دعوت کو سکے سورہ فاتحہ رٹ پڑے تھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم الدين أما بعد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. گۄڈنِچ کتھ یۄس اَسہِ سمجھِنۍ واریاہ زیادٕ ضروٗری چھِ. أسۍ چھِ چوٗنٛکہِ کٲشرِس ماحولس منٛز ہم کشمیر میں رہتے ہیں. یہاں کی جو مادری زبان ہے سۄ کیٛاہ چھِ؟ کٲشِر زبان بولنہٕ خٲطرٕ چھنہٕ اَسہِ کُنہِ سکوٗلس گژھنٕچ ضروٗرت. یہ زبان چھِ أسۍ گرِکِس ماحولس منٛزٕے ہیٚچھان. اس زبان کو پانے کے لیے نہ ہم نے کسی ادارے میں جانا ہوتا ہے نہ ہم نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے. کیونکہ یہ ہماری زور سے بولو، یہ ہماری اپنی زبان ہے. اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دوسرے معاشرے کی دوسری زبان سیکھوں. جیسے اردو کی بات ہم کریں، اسی طریقے سے ہم ہندی کی بات کریں، فارسی کی بات کریں، عربی کی بات کریں، انگریزی کی بات کریں. چونکہ یم زبان چھن اس پنہ زبان، یم زبان ہیچھنہ خاطر چھ زٕے طریقہ. اگر تو یژھو انگلش بولن
آپ انگلش پڑھنا چاہتے ہو، آپ انگریزی لکھنا چاہتے ہو، آپ انگریزی بولنا چاہتے ہو، اور آپ انگریزی سمجھنا چاہتے ہو، اس کی دو ہی شکلیں ہیں۔ یا تو گژھو تُہۍ تَتھ ماحولس منٛز ییٚتہِ انگریز موجود آسن، آپ ان کے ماحول میں رہو گے، ان کی باتیں سنو گے، ان کی سن کر آپ انگریزی سیکھ پاؤ گے۔ آپ کی نظر کہاں ہے؟ مکمل توجہ رکھو۔ یا تو چھُ اَسہِ کوٚت گژھُن، تَتھ جایہِ ییٚتہِ چھِ یِم انگریز بسان چھِ۔ تو جیسے وہ بولتے ہیں ہم بھی سیکھیں گے، یِتھ کٲٹھۍ اَسہِ ییٚتہِ پنجٲبۍ یِوان چھِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ، وہ کشمیری تو نہیں ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، ہماری کشمیری سنتے ہیں، ہمارے الفاظ سنتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ بھی کشمیری کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کرن چھا؟ ہاں، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی زبان کا گرامر سیکھیں۔ کہاں زبان ہیچھنے خاطر یم تمہِ زبان خاطر اصول گرامر قٲیدٕ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تمہِ زبانہِ ہُنٛد گرامر تگہِ زانُن تہٕ پرزناؤن، اس کے واسطے سے ہم وہ زبان سیکھنا اور پڑھنا جان جائیں گے۔ کیونکہ اَسہِ چھِنہٕ ییٚتہِ انگریز موجود کینٛہہ۔ اس وقت جو ہے ہم عربی گرامر کی بات نہیں کریں گے، عربی زبان کی بات نہیں کریں گے، ہم اس وقت پڑھانے جا رہے ہیں انگریزی۔ ہم انگریزی انگلش کی زبان اور انگریز کی زبان ہم کیسے پڑھ پائیں گے؟ اس کِتھ کٲٹھۍ ہیکو انگلش کتاب تلو اس گژھو سۄ پانے ہیکن پڑھت، اس کا ہم خود ہی ترجمہ کریں گے، اور کوئی شے پہ ایسے تقریر کرنے ضرورت وہاں ہم انگریزی میں بولنے کے قابل ہو جائے۔ کٲشِر پٲٹھۍ ہیکو تُہۍ تقریر کرت ہے نا۔ اب آپ نے قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ونکیس چھُ نیبرمس ماحولس اندر سکولی ماحول، باہر کی دنیا میں سکول کے طلبہ ہے، کالجز کے طلبہ ہے، یونیورسٹی کے طلبہ ہے، تو ان تک آپ نے دین پہنچانا ہے۔ تو یہ واتنٲیوا تہنزِ زبٲنۍ منٛز کن پننہِ زبٲنۍ منٛز جو ان کی اپنی سکولی زبان ہے، اور سکولی زبان کیا ہے؟ انگریزی ہے سکولی زبان۔ اور ایک مدرسے کا طالب علم اور ایک مدرسے کا عالم اور ایک مدرسے کا فاضل وہ کسی علاقے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ پورے عالم دنیا کے لیے اللہ اس کو منتخب فرماتے ہیں۔ تمس اندر گژھِ تیٖژاہ صلٲحیت آسُن، سُہ گژھِ تقریباً ہر زبان اندر ہیکُن بوٗلِتھ۔ وۄنۍ اگر نہٕ تمام زبانن منٛز سُہ ہیٚکہِ بوٗلِتھ کینٛہہ، کم از کم تِم زبان گژھِ سُہ ہیکُن استعمال کٔرِتھ یم پورٕ دنیاہس اندر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ استعمال چھِ گژھان۔ جیسے انگریزی ہی زیادہ بولی جاتی ہے، عربی بولی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، تو کم از کم یمن زبانن پہ محنت کریں أکِس عالمس اور أکِس طالب علمس لازم تو ضروری۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ کو قرآن کے لیے آپ کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے لیے آپ کو باضابطہ اصول پڑھائے جاتے ہیں، عربی لغت پڑھائی جاتی ہے، آپ آگے جا کے عالم بنیں گے، پھر آپ جا کے فاضل بنیں گے، پھر آپ جا کے مفتی بنیں گے، آگے جا کے آپ قاضی بنیں گے۔ آپ عربی زبان کو اس طریقے سے سمجھ پاؤ گے، یم تہ پتہ عربی زبان ہند کتاب آسن تم ہیکو تُہۍ آسانی سان کھولت اور آپ پڑھ پاؤ گے، اور تُہۍ ہیکو سُہ امتس برونٛٹھ کن بیان۔ اتھے کٲٹھۍ اکھ عالم سُہ گژھِ بیک وقت انگریزی زبان یۄس چھِ تتھ پٮ۪ٹھ گژھِ تٔمِس دسترس آسٕنۍ، کیٛاہ آسٕنۍ؟ تو اسی کے لیے ہمارے مدرسہ العائشہ رضی اللہ عنہ اکیڈمی نے مشاورتاً یہ بات طے کی ہے، آپ کو روزانہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے اس کا بنیادی گرامر آپ کو پڑھایا جائے گا، مگر تتھ چھو تُہۍ باضابطہ محنت کریں۔ کیا چھِ کریں؟ محنت، اور ہر رٮ۪تہٕ آسہِ تتھ امتحان گژھان۔ لہٰذا جیسے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے رات میں ہمیں صبح کے سبق یاد کرنا ہے، صبح ہم نے سنانا ہے، پھر ہم نے اس کا گردان کرنا ہے۔ اتھے کٲٹھۍ تھٲیزیو یہ ذہنس منٛز انگریزی گرامر اور انگریزی زبان، اگر آپ محنت کرو گے زیادہ کچھ دیر نہیں ہے، انہی 5-6 مہینوں کے اندر آپ انگریزی زبان بولنے والے ہو جاؤ گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تو وۄنۍ چھِ اَسہِ انگریزی انگریزن نِش ڈائریکٹ ہیٚچھُن کِنہٕ گرامرٕکۍ ذریعہ؟ کیونکہ یہاں انگریز نہیں ہے، تتھ چھِ ونان ڈائریکٹ میتھڈ تو انڈائریکٹ میتھڈ۔ ہاں، تعلم اللغہ بتوسط او بغیر توسط، کُنہِ واسطہٕ کانٛہہ زبان ہیٚچھِنۍ تتھ چھِ ونان أسۍ انڈائریکٹ میتھڈ۔ بیاکھ گوٚو ڈائریکٹ میتھڈ، یم زبان بولن وٲلۍ آسن، یم یِتھ کٲٹھۍ نیبرِم یہ سا بنگال چھِ یور یِوان، بہارٕکۍ چھِ یور یِوان، یوٗ پی ہٕنٛدۍ چھِ یور یِوان، تمن چھنہٕ چوٗنٛکہِ پنٕنۍ زبان کٲشِر، مگر وہ ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، اور مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد وہ کیا بولتے ہیں؟ کشمیری بولتے ہیں۔ یہ ہے براہ راست۔
हम आज से अंग्रेजी जुबान को सीखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट सीखना है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट को तेलिए अंग्रेज ये ऐसे। अब हम किताब के जरिए से सीखेंगे, ग्रामर के जरिए से। क्या? ग्रामर की। तो ये कह जबान हेचन, तथ जबान गोडनथ क्या हरफ आसान। जैसे आप कुरान पढ़ने के लिए जाते, आप पहले क्या पढ़ते हो? नूरानी कायदा। नूरानी कायदा पढ़ते हो ना? नूरानी कायदा में पहली तख्ती क्या है? तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात में क्या होता है? अलिफ से लेकर या तक हर हर्फ अलग अलग है ना? पहले तो ये पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि कुरान की जुबान अरबी है और अरबी जुबान के जो हरूफ हैं ये मन हरूफ तहजी क्या वन तिमन वन नूरानी कायदस में मुफरदात। क्या वन तमन? मुफरदात। ये तो अंग्रेजी जबान ये बोलन, मिसाल के तौर पर अस तुलहोन क्या नाव? जाफर। तो क्या नाव लेखन जाफरस? JAFFAR। ये क्या गो? अच्छा यूस जे यह हर्फ मुफरद मुफरद। ए क्या है? ये भी हर्फ है। एफ क्या हर्फ, एफ हर्फ, ए हर्फ, आर यम सारी हर्फ। यम ए पे जड़स ताम यम तथ मज सारी हर्फ। गोडनथ गई नाव बनाने खतर जरूरी तही गु पाई आसिन अंग्रेजी जबान हिंद यम हर्फ गसन जबानी याद। इस कुरान खतर कम हर्फ याद करें जरूरी, अलिफ से लेकर या तक यमन वन मुफरदात या हरूफ। तो इथे कट अंग्रेजी जुबान सीखने के लिए जरूरी है अंग्रेजी जुबान के इन मुफरदात को आप याद करेंगे। यम क्या कर हो? याद। तो छो समझ यमन यमन हरफन युसम ए से लेकर जड़ तक ये 26 हरूफ है। कितने? ए से लेकर जड़ तक कितने हैं? 26, 26। यथ ए हस वनो लेटर क्या वन होस? क्या वन होस? बी हस वनो, जोर से बोलो, तख्त वनो ये। सी हस वनो, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो क्या आसान? हाँ, हंसने की क्या वजह है? तो फिर ए से लेकर जेड तक कितने हरूफ हैं? एक सवाल ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि अंग्रेजी जुबान के जो हरूफ हैं उनकी तादाद कितनी है? 26। एक तो ये। दूसरी बात वो क्या है? ए से लेकर जेड तक, यानी कि ए बी छुते को तमर बोजना वन ईशो याद तो शायद याद तल बोजना। ठीक। जी। तो याद तल बोजना जोर जोर। तो तला याद सुनाओ। तो दानिश याद सुनाओ। दरवाजे तो याद है? तो तक याद क्या याद? ABC रट था ब्रोट कन तो बोजना AB और रट अथस क्या थे रट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब है ना ये मन वन यथ कुरान पाक खतर कयद गोडनथ पढ़ान नूरानी कयद तख्ती नंबर 1 मुफरदात। इथे अंग्रेजी जबान हिंद मुफरदात क्या? ए से लेकर जेड तक। और वो कितने हरूफ हैं? 26।
तो पहला सवाल होगा अंग्रेजी जुबान के मुफरदात की गिनती क्या है। सवाल था जो जहनस में अंग्रेजी इंग्लिश जुबान के मुफरदात और हरूफ तहजी की गिनती कितनी है। जवाब होगा 26। दोयम सवाल ऐसी अंग्रेजी जबान हिंदी मुफरदात वो आप सुना लीजिए जैसे आपने सुनाया अभी ए से लेकर जड़ तक। ये तो मत आओ समझ यूसी ए से लेकर जड़ तक ये में सारी जमा कर हो शतव हरफ यमन वन अल्फाबेट्स क्या वन जोर पा वन एल आओ समझ ए से लेकर जड़ तक कितने हरूफ हैं 26। यम तमाम ये जमा कर हो तो करो कहा सवाल ए से लेकर जड़ तक ये किस जुबान के हरूफ हैं। आपने जवाब देना है अंग्रेजी और इंग्लिश जुबान के। साथ में इन तमाम हरूफ मसलन तो यतन 10 12 14 लड़कों छो तई वन तो क्या छो जवाबी दिन मदरसे के तालिब इल्म मदरसे के इसका नाम है मोहम्मद तकी, इसका नाम है एजाज, इसका नाम है हुजैफ, इसका नाम है जाफर, इसका नाम है तलहा, इसके नाम इसका नाम है जिहान। इसी तरीके हर एक का अपना अपना नाम है, हर एक का अपना अपना नाम। ए को ए कहते हैं, बी को बी कहते हैं, सी को सी कहते हैं, डी को डी कहते हैं, ई को लेकिन इन तमाम को जमा करने के बाद इन सब का क्या नाम है। इन सब का नाम है अल्फाबेट। क्या अल्फा ALPHABET अल्फाबेट। ये करता है तमाम तलबा कोई नाव दिमती के वो मदरसे के तलबा मदरसे के इथे कर हर एक पन पन अलग अलग नाम। लेकिन जब सबको हम जमा करेंगे फिर सबका नाम कितना है एक मदरसे का तालिब इल्म। तो ए से लेकर जड़ तक हर हर्फ का अपना नाम है। लेकिन इन साथ सारी जमा करो कि मन क्या बनो ये तमत रुजो का यार। चलिए अच्छा ए से लेकर जड़ तक इस पूरे मजमे को हम क्या कहेंगे अल्फाबेट्स। वन जन वुचो इस ए से लेकर जड़ तक यम कस हरफ छ 26 यमो मज हर अकिस क्या क्या नाम था ए याद थे फिलहाल ये क्या है इसका नाम है लेटर। LETTER लेटर। क्या ए को क्या कहेंगे लेटर, बी को सी को डी को ई को एल जेड जी एच आई एक्स डब्ल्यू क्यू के एम एन ओ यम साथ यम सारी लेटर जमा करो तिमन के पतना आओ ये सारी लेटर जमा करो। सारी लेटर कस जोर पा वनो सारी अंग्रेजी जुबान में कितने लेटर है 26। अगर इस कौशल पे वनो अंग्रेजी जबान मज कच हरफ वनो 7 वन अगर इसे इंग्लिश माहौलस मज वनो अंग्रेजी जुबान के कितने लेटर हैं 26। उन तमाम लेटर्स को हम जमा करेंगे तो उनका क्या नाम बनता है अल्फाबेट्स। अब समझ मदरसे के कितने तलबा है हमने कहा 14 में एक का नाम मोहम्मद तकी, एक का नाम यासिर, एक का नाम उस्मान, एक का नाम दानिश ना पन पन नाम। तो इथे कर अंग्रेजी जुबान में कितने हरूफ हैं 26। इन 26 हर्फ में से हर हर्फ को क्या कहेंगे लेटर। ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, डी लेटर, जेड लेटर। इन तमाम लेटर्स को हमने जमा किया फिर हमने उनका नाम क्या रखा ये तामत आया का समझ और जोर पा वन्यू समझ आए कि न। अच्छा यहां तक आपने बात समझी। तो यहां तक कितने सवाल जमा हो गए याद रखो। पूछो गोडुक सवाल क्या है अंग्रेजी जुबान के हरूफ वही क्या वन होता लेटर्स की गिनती कितनी है कितनी आख सवाल को ये। दोयम सवाल क्या है अंग्रेजी जुबान के हर हर्फ को अंग्रेजी में क्या
कहा जाता क्या शेर वन हर हर्फ को सवाल गई त्रेयम अंग्रेजी जुबान के तमाम हरूफ तमाम हरूफन क्या वन लेटर्स ना लेटर्स तमाम लेटर्स को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है अंग्रेजी जुबान के तमाम हरूफ को अल्फाबेट्स क्या हर हर्फ को और कितने हरूफ हैं ये तो आज अंग्रेजी ग्रामर का पहला सबक और इसके कितने सवालात 3 सवाल इन 3 सवालात को आपने हर हाल में याद करना और रखना है तो सवाल छो मैं दोबारा दोहराता हूँ कति हेको इंग्लिश जबान हेचित कचो तरीको हेको हेचित दोयो तरीको गोडुक तरीक या तो आसो तिमन मुल्कन अंदर अंग्रेजी जुबान बोलने तिमन यूरोपी ममलिक मगरबी ममलिक अमरीका रूस चाइना तक चीन बोलान त्राठी षणित तो तो या तो हम वहाँ उन ममालिक में रहेंगे वहाँ हम उनसे बराह रास्त सीखेंगे ये नबरम योर तम हेचन कत कोशर तिमन कह किताब पढ़ने खतर ना वो हमसे सुनते हैं और सीख जाते हैं हम अरब जाएंगे यहाँ के बहुत सारे लड़के और लड़कियां जाते हैं वहाँ काम करने के लिए उनकी जुबान कश्मीरी है उन्होंने अरबी नहीं पढ़ रखी होती है वहां जाकर वो उनसे अरबी सुनते हैं और याद कर लेते हैं और फिर बोलना शुरू कर देते हैं ये गो बराह रास्ता अख तरीक दोयम तरीक कह जबान हेचने खतर तम जबान हुन ग्रामर पढ़ो तो हम जो अंग्रेजी जुबान को सीखने जा रहे हैं हम अंग्रेजी ममालिक में मौजूद तो नहीं है हम अपने कश्मीर में मौजूद है मुल्क हिंद में मौजूद है लेकिन अस निश अंग्रेजी जबान हेचने खतर किताब मौजूद ये वन ग्रामर क्या वन अंग्रेजी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर किताब पढ़ित हेको क्या बोलित इंग्लिश अंग्रेजी हम बोल सकते हैं हम पढ़ सकते हैं हम लिख सकते हैं हम जान सकते हैं उसका तर्जुमा कर सकते हैं यही चीज ना सान खतर जरूरी पगह बनो तुम इंशाअल्लाह हाफिज आप अपनी जुबान में बोलते हो तो बोलते पानी जबान मुर्शद गसन आपने उर्दू बतानी है बोलनी है तो उर्दू को सीखना होगा फारसी में आपने बोलचाल करनी हो तो उसको सीखना होगा इथे करियो तो अहद करियो और इसका आपको बाज़ाबिता तौर पे इम्तिहान लिया जाएगा बाज़ाबिता तौर पर तो ये करते कुरान पाकस इम्तिहान निन हिफ्ज वाले हिफ्जस नाजरा वाले नाजरस कायदा वाले कायदस इथे कर पगा अंजुमन ऐसे अंजुमन में आपकी तकरीर को देखा जाएगा फिर आगे जाकर आपको लिखाने का और लिखने का वो सहाफत का तरीका भी सिखलाया जाएगा तो गो पगह सोसाइटी अंदर हर एक शोबस में हेकन काम कर बोलो इंशाअल्लाह आपने कोशिश करनी है हर मशहूर जुबान में आपने लोगों के सामने तकरीर करनी है कि अवाम के जहन में ये बात बैठी है ये जो मदरसे के तलबा होते हैं इनको जो है अंग्रेजी नहीं आती है आप इतनी मेहनत कर लीजिए आप कौम को बता लीजिए हमारे अंदर इतनी सलाहियत है हम अरबी भी पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं हम उर्दू पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं बोल सकते हैं इसी तरीके से हम अंग्रेजी जुबान पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं जान सकते हैं बोल सकते हैं समझ सकते हैं और समझा सकते हैं इतनी आपने मेहनत करनी है फिर देखिए ये पूरा माशरा आपके कदमों के तले आ जाएगा इंशाअल्लाह करेंगे ना मेहनत करेंगे ना मेहनत तो हम जो अंग्रेजी जुबान इस वक्त पढ़ रहे हैं ये अंग्रेज से पढ़ रहे हैं या किताबों से पढ़ने को ग्रामर कहते हैं क्या ग्रामर और अंग्रेजी जुबान के कितने हुरूफ हैं 26 अंग्रेजी इंग्लिश जुबान में कितने हुरूफ हैं 26 और उनमें से हर हर्फ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं लेटर उनमें से हर एक हर्फ को लेटर कहते हैं उन तमाम लेटर्स को हम जब जमा करेंगे उनका क्या नाम पड़ता है अल्फाबेट्स तो कहेंगे इसकी गिनती है 26 अंग्रेजी जुबान के हुरूफ की गिनती है 26 और उनमें से हर हर्फ को लेटर कहेंगे और उन तमाम लेटर्स को जब हम जमा करेंगे ए से लेकर जेड तक उन तमाम लेटर्स को हम अंग्रेजी जुबान में क्या कहेंगे अल्फाबेट्स गिनती 26 हर हर्फ का नाम लेटर और तमाम लेटर्स को
तमाम हरूफ की गिनती 26 हर हर्फ को लेटर तमाम हरूफ को कितने हरूफ हैं 26 हर हर्फ को लेटर तमाम हरूफ को बस ये है आज आपका सबक। इसको आप कॉपी पे लिख के रख लीजिएगा इन 3 सवालात को। कल आपको इन 3 सवालात का पहले जवाब देना है, फिर आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आपने इसको कैसे पढ़ना है, ये करते रात में सोने से पहले खाने के बाद आप कुछ देर पढ़ते हो ना, हम कुरान का दौर करते हो, तो आपने सोने से पहले जहां आपने कुरान की तिलावत करनी है, अंग्रेजी ग्रामर के एतबार से भी आपने इस पर भी मेहनत करनी है। आप उर्दू भी पढ़ते हैं ना, यम तो किताब यीनो थानो, उन किताबों को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साथी समझो। अगर पन्नन किताबन आज वफादारी करो, जिंदगी के किसी पड़ाव में आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आज आपने इस उम्र में किताबों के साथ बेवफाई की, जिंदगी हो ना हर का दोस्त सताए होते पर आपको खुद अपने आप से नफरत होने लगेगी। पूरी इंसानियत दुनिया इल्म के साथ जुड़ जाएगी तो रुजू इल्म निश दूर। आप बोलने के काबिल नहीं रहोगे, लिखने के काबिल नहीं रहोगे, फिर आपको खुद अपने आप से नफरत होने लगेगी। लिहाजा अपने माशरे में सर उठा के चलने के लिए जरूरी है आप कुरान के साथ मुकम्मल रिश्ता निभाए और कुरान पाकस मुतल्लिक़ ये उस्ताद वनव यम तरीक तक तिलावत करें, यम तरीक से हिफ्ज करूँ, यम तरीक तक गर्दान करूँ, किस तरीके से हमने कुरान को महफूज करना है, तिम तमाम उसूल मानन लाजिम तो जरूरी। इसी तरीके से उर्दू सीखने के लिए जो ज़ाब्ते और कायदे हैं उन पर अमल करना है, और अंग्रेजी जुबान के सीखने के लिए जो ज़ाब्ते और कायदे हैं उन पर क्या करना है, अमल करना है। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, अल्लाह आपके वालिदैन और हमारे वालिदैन को कबूल फरमाए, हम सब की इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और क्या पढ़ना है, बिछो पढ़ उनके तकरीर छो तो याद करन, हाँ अंजुमन हम, चलो ठीक है, उसकी तरतीब भी हम बताएंगे।